Okay, let's start. So, welcome, good noon, everyone. And yeah, so I'll start with some introduction of myself. मतलब बहुत सारे maybe new लोग होंगे या maybe बाद में भी कुछ लोग देखेंगे तो they need to know. Can everyone else mute yourself for now? Yeah. So I'll just start with my introduction. हम लोग बाद में तुम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकते हो बट या सो आई एम मोहम्मद अजहर अब्दुल रहमान आई एम born and brought up in Parvani, Maharashtra. I have total almost 10 11 years of experience into IT industry. Worked with different technologies, different positions, senior full stack developer, software engineer, IoT consultant, and senior full stack developer. So this is my just brief. I have a passion towards even learning and mentoring people. In the past, I have mentored many people, and that's the reason I have started this coaching and mentoring thing for myself. So being a mentor, trainer, and social worker as well for some time. That's all about me. But yeah, um, so this is a built introduction of myself. I have been into software development, IoT product development, front end development. I have worked on Azure Cloud. Node.js and Python are my skills around backend technology. Even I've worked with .NET. And around my employment history, I started with trainee with Sintel at Oz. Then I moved to Capgemini. Then I was working in Aurangabad for 3 years with Export Global IT Solution. Then I was working with Every Dennison as an IoT consultant for 2 years. Currently, I will be starting my new venture with Pluralsight, a Microsoft-based partnered company. So that will be my new journey towards IT. So that's the reason I am in Bangalore. I know many people misses like we should have this offline, but that is fine. Sorry for all of them. But I will be soon be in Parvani in a week or so. I've done many freelancing projects around the automatic driverless car and few around job portal, HR portals. My education, I studied in Queen's Junior College and School and Junior College for almost 12 years, so till 12th standard. And then I have completed my engineering in IT, BTech IT from Government Engineering Amravati. So that's just, and you can contact me on this email ID or my number. Most of you has my number. So this is all about me, a brief introduction of myself. I don't want to spend more time around myself. Rather, this demo is for you guys. This demo is for you guys. Um, is my screen visible? Okay. So today we are going to talk about the offerings of our course, that is React Web Developer course. What you will gain in this code, what are the features of this code, what you will be learning in this course. तुम लोग क्या सीखोगे, क्या है ये कोर्स, एक्चुअल में आईटी इंडस्ट्री में क्या है और तुमको कौन सा पाथ लेना चाहिए. मैं बहुत सारे ऑप्शंस भी तुम लोग को रेफर करूंगा या एक्सप्लोर करके बताऊंगा. बट ये कोर्स में सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी, मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो बोलेंगे इस कोर्स का, कि तुम लोग बेसिक से लर्न करोगे. बेसिक से लर्न करोगे मतलब इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड और इवन दो इफ यू आर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड,
some concepts and some things are very much essential for you to know around the basics of computer science. Computer science क्या रहता है, कैसे रहता है. मे बी ये चीजें शायद तुम जब 12 तुम जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या बीसीएस कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, ये तब तुमको पता नहीं होगी या तुमको किसी ने बताया नहीं होगा. बट आई विल गाइड यू सिंस फ्रॉम द बेसिक्स. बेसिक्स से हम लोग ये कोर्स स्टार्ट करेंगे. You will learn from the industry experts. Like I am already 12 years of experience. I know what is there in the industry. Industry में क्या चलता है, क्या करना पड़ता है तुमको, कैसे करना पड़ता है. These all things you will know. Uh, so um, and then I will also prepare you guys around interview questions, concepts of learning, how do you introduce yourself, what should you say in the interview वगैरह वो भी प्रिपरेशन में करवाऊंगा. देन मैं गाइड करूंगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस डालना चाहिए, कैसे एक्सपीरियंस डालना चाहिए, हाउ शुड यू क्रिएट रेज्यूम्स ऑन योर नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड, लिंक्डइन. एंड देन हम लोग वॉइस इज क्रैकिंग. हेलो, can you hear me now better? Okay, so you will get to know more about interview questions and concepts, and even I'll guide you towards how you will be creating your Naukri profile, Monster, and Indeed and LinkedIn. We will also have in this course a live project to work on. As I am already doing few of the live projects, I will guide you guys around doing some live project. We will form some teams so that you guys are with your friends and with your teams, and you together work hard to achieve your goal. So what is to get a job basically, and this would be a motivated and self-focused learning professional environment. And the last feature is once you get the student of mine, you will always be a student of mine, and then you can anytime ask me any questions you have. I will be trying my best to answer them whenever I can or whenever I get time. So yeah, and then these are all common questions I am trying to cover because many people, because we are starting a new batch from 1st of December. I just want everyone to know what they are going to learn और क्या क्या वो लोग सीखने वाले. तो ये almost 6 months का career course रहेगा. 3 months you will learn, means 3 months will be practical theoretical concept preparations. ये सब practical and theoretical concept understanding for 3 months रहेगा. 3 to 3.5 months भी जा सकता है as per your pace और जो बैच की ग्रास्पिंग पावर रहेंगी उसके अकॉर्डिंग. This 3 months practical and theoretical concept preparation on HTML, CSS, JavaScript and React will go on. And then we will have 15 से 30 दिन का लाइव प्रोजेक्ट भी रहेगा. एंड देन फिर वी विल टेक 10 to 15 days फॉर रिज्यूम प्रिपरेशन, अकाउंट क्रिएशन, जॉब वेबसाइट वगैरह में डालने के लिए. एंड 30 to 45 days यू विल नीड टू इंटरव्यू शेड्यूलिंग, क्रैकिंग द इंटरव्यू वगैरह करने के लिए ऑलमोस्ट 30 days लगेंगे. तो इस तरीके से इंशाल्लाह तुम लोग का सिलेक्शन, अगर तुमने डेडिकेटेडली बहुत अच्छे से ये कोर्स एक भी लेक्चर बिना छोड़े किया तो इंशाल्लाह 6 months में यू विल गेट सेलेक्टेड समवेयर, because there is a great opportunity here. Timing mostly it will be on 7 a.m. to 9 a.m. but अभी ये थोड़ा सा मेरे को चेंज करूंगा मैं. और कोई भी चेंजेस रहेगा देन वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें मैं इन्फॉर्म करूंगा. बट क्योंकि अभी भी मेरी करंट बैच चल रही है और नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होने वाली है, आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम गोना मैनेज इट. बट 1-1.5 घंटे की क्लास तुम लोग की डेली स्टार्ट होंगी जो भी फर्स्ट बैच रहेगा. देन बहुत सारे लोग फीस का पूछते हैं. फीस, टोटल फीस इसकी पूरे कोर्स की द एंटायर फीस इज 30,000.
10,000 while you do the course, like 10,000 means actually it is 10,000 only, 30,000 is just to say फीस 10,000 है. 10,000 का कैसे देना है तुम लोगों को कि while मतलब जब भी हमारा जब बैच वगैरह स्टार्ट होंगी तब आपको 3,000 देना है और वो एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी. बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,000 एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 1,000. तो इस तरीके से तुम लोग के 10,000 हो जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स एंड व्हाइल यू आर स्टडिंग. योर फीस इज 10,000 रुपीज and once you get selected you have to pay 20,000 rupees. ऐसा total 30,000 rupees fees है. Total 30,000 rupees fees है. 10,000 while you do the course. Every month 2 to 3,000 you have to pay till 6 months or 5 months whatever. 10,000 fees एक बार हो गई तो हो गई and then 20,000 after you get selected. अगर कोई फाइनेंशियली बहुत वीक स्टूडेंट है दे हैव टू मींस जो 2,500 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है महीने के, जो 2,500 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है महीने के, देन उनके लिए आई विल मींस एंटायर फीस दे कैन 30,000 पे आफ्टर दे गेट सेलेक्टेड फॉर ओनली फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स. Okay, so whoever is financially weak, they can pay the entire 30,000 fees after you get selected. But this should be genuinely financially weak student. That is one thing. So किसी को फीस के स्ट्रक्चर में या फीस के अंदर कोई क्वेश्चन है? और ये फीस तुम लोगों को मेरे ऐप के थ्रू पे करनी पड़ेगी, मतलब एंड वी विल हैव ऑल द लेक्चर्स ऑन एन एंड्रॉइड ऐप जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है. और ये फीस भी जो रहेंगी ये फीस तुम लोगों को वहां पर से ही पेश करनी पड़ेगी. एंड whoever wants to register for the first batch, like 1 दिसंबर को जो चालू हो रही है बैच, whoever wants to register into it, I will be sending. There is a registration link. So you have to register from there. You have to download the app, and you have to start paying the first installment. हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है सर? हाँ सर मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस का. एक मिनट, ये पहले तो फीस में क्वेश्चन है कि मेरे को पहले पूरा कंप्लीट करने दो. आई विल गिव एवरीवन चांस टू आस्क देयर ओन पर्सनल क्वेश्चंस. अभी मैं जो बोल रहा हूँ या मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, मैं एंड में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगा. उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? जितना भी अभी तक मैंने बोला उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पहले वो मुझे क्लियर करने दो, ठीक है? लास्ट में मैं सभी के क्वेश्चंस लूंगा. ओके, एनी क्वेश्चंस इन द फीस स्ट्रक्चर किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं. मोड ऑफ द क्लास, मेजरली मोड ऑनलाइन ज्यादा रहेगा क्लास. ऑफलाइन भी है, मतलब मेरे को मतलब मेरे घर पर पूरा सेटअप है ऑफलाइन क्लासेस के लिए. वी हैव बोर्ड्स, वी हैव क्लासरूम स्पेस, वी हैव ऑफिस स्पेस, एवरीथिंग इज देयर. बट करंटली अभी मैं क्योंकि कभी कभी मैं बेंगलोर वगैरह कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ, then in those scenarios the batches will be online, so it would be a hybrid kind of mode. जो कि ऑफलाइन, तो अगर मैं घर पर रहूंगा परभनी में then it will be an offline. So the office location is परभनी महाराष्ट्र. जो भी अगर वहां के लोग हैं जो वहीं से अटेंड करना चाहते हैं, they are most welcome to attend it from the class or training institute itself. But whoever is out of India, out of परभनी या महाराष्ट्र या कहीं से भी हो, वो लोग सब ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं. हम लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतना ही पावरफुल है जितना ऑफलाइन है. देयर इज only 10% different आ सकता है. just you have to, you can see me personally and you can ask questions, we can wait, we can try to do things if you are coming offline. But even online and offline, both modes are equally very good, wherein there is all the scenarios and models created. प्रोसेस बना हुआ है जो कि हम लोग अपने एंड्रॉइड ऐप के थ्रू ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं. तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट यू हैव बोथ द ऑप्शंस. व्हेनेवर आई एम देयर इन परभनी, हम लोग वहां से करेंगे. रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन. सो दिस इज वन थिंग.
एक इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम लोगों के पास लैपटॉप होना जरूरी है। लैपटॉप इज अ कंपल्सरी थिंग, बिकॉज अगर तुम आईटी वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो और तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं है, कंप्यूटर भी रहा तो चलता, डेस्कटॉप वगैरह, इवन एक अच्छा मोबाइल भी रहा तो भी चलता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस, लेकिन खाली तुम नॉलेज के लिए लर्न कर लोगे। बट इट इज बेटर टू हैव अ कंप्यूटर, whoever is enrolling to this course, ये एनरोल करने के लिए ये कोर्स एनरोल करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है। रहा तो बहुत अच्छा है, बट थ्योरी तुम अभी भी पढ़ सकते हो, जिसको थ्योरी पढ़ना है या जिसको पहले क्या कंप्यूटर रहता है वगैरह सिर्फ सब पढ़ लेना है, और अभी के लिए उनका एम जॉब पाना वगैरह अभी के लिए नहीं है, बट फिर भी वो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं जस्ट टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, जस्ट टू गेट सम मोर नॉलेज अबाउट इन आईटी, दे कैन स्टिल डू दिस कोर्स। जैसे कि मेरे पास अभी 12वीं के भी 2 से 3 लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, बट दे आर स्टिल डूइंग द कोर्स, दे आर डूइंग द कोर्स ऑन द मोबाइल, और मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, क्योंकि आजकल द वर्ल्ड इज सो फास्ट एंड आगे बढ़ चुका है कि anybody can do this, like anybody can means there are many Android and iOS based application. Okay, I missed the slides in the first. This was the first slides, I think. तो पहले तो मैं तुम लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि दिस व्हाट इज दिस आईटी वर्ल्ड। आईटी वर्ल्ड में कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आईटी वर्ल्ड में कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और तुम क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आईटी वर्ल्ड में जा सकते हो। सो यहाँ पे आईटी वर्ल्ड में बहुत सारे, पहले तो तुम लोगों को कंप्यूटर समझ में आना चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को एक लैंग्वेज समझ में आती है, जैसा अभी अभी मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ, यहाँ पे कुछ कनाडा वगैरह है जो मुझे नहीं समझ में आती है, ना मुझे आती है। अगर मेरे को इन लोग से बात करना है तो मेरे को कन्नड़ समझना पड़ेगा, वैसे मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मुझे मराठी आनी चाहिए, मैं यूएस में जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। तो अगर मेरे को कंप्यूटर के वर्ल्ड में जाना है तो मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज आना चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज आना चाहिए। अगर तुमको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना है तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तुम लोगों को पहले तो कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे रोल्स यहाँ पर है आईटी वर्ल्ड में। एक तो बैकएंड डेवलपर्स बोलकर रहता है, जिनको जो लैंग्वेज सी शार्प, डॉट नेट, पाइथन, जावा, नोड जेएस, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जिसको आती है उनको बैकएंड डेवलपर्स बोला जाता है। ये बैकएंड डेवलपर्स करते क्या है, ये इस लैंग्वेज में कुछ बिजनेस का लॉजिक लिख के बैकएंड में कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। बैकएंड बोले तो सर्वर पे कुछ तो भी काम करके वो कुछ सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आती है सी शार्प, पाइथन, जावा, नोड जेएस, गोलैंग और बहुत सारे हैं। मैंने जस्ट थोड़े से मैंने ऊपर ऊपर से लिख दिया है। तो जिनको ये लैंग्वेजेस आती है उनको क्या बोलते हैं, बैकएंड डेवलपर। और कोई होता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर बोले तो जो तुमको सामने दिखता है, फ्रंट में जो दिखता है, जैसा कि अभी तुमने तुम्हारा ब्राउजर खोला, तुमने गूगल मीट देखा, तो गूगल मीट जो सामने दिख रहा है उसको फ्रंट एंड बोलेंगे। तुमने फेसबुक खोला, फेसबुक का जो पेज देख रहे हो तुम, उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड बोलेंगे। तुमने कोई भी पेज ब्राउजर के अंदर खोला है, वो पेज 80% ऑफ द टाइम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। ये तीनों लैंग्वेजेस को मिलके वो तुम्हारा जो फेसबुक का पेज आया हुआ है, ये तीनों लैंग्वेजेस से मिलकर आया हुआ है। तीनों लैंग्वेजेस से मिलकर आया है, तो इसमें क्या है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और कुछ लोग होते हैं यहाँ पे एज अ रोल कॉल्ड एज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, जिनको बैकएंड का भी नॉलेज होता है, जैसे कि लैंग्वेजेस तीनों चारों में से एक कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन का या नोड.जेएस का नॉलेज होता है, और इवन फ्रंट एंड का नॉलेज होता है। एक्चुअली जो तुम्हारी पूरी वेबसाइट जो चलती है ना, वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का मिला के चलती है, दोनों को मिल के चलती है वो। ओके, तो ये दोनों को मिल के चलती है, और ये दोनों भी चीजें जिसको आती है उनको फुल स्टैक डेवलपर्स बोलते हैं, उनको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। इसमें मॉन स्टैक, मीन स्टैक वगैरह जो है ना, ये सबको फुल स्टैक डेवलपर्स बोलते हैं। और कुछ होता है कॉल्ड एज डेवऑप्स।
कुछ कुछ चीजें होती है जिसका नाम है डेवऑप्स। डेवऑप्स बोले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तुम्हारे सर्वर्स है, जो तुम्हारे आईटी सर्वर्स है, जो बड़े बड़े सर्वर्स हैं, अगर तुम लोगों को उसको मैनेज करना है तो वहां पे डेवऑप्स इंजीनियर्स उसको मैनेज करते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, अभी क्लाउड डेवलपर्स की बहुत डिमांड, उसकी भी डिमांड अच्छी चल रही है, जिनको जिनको अज्योर की कोडिंग आती है, अज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये अज्योर बोले तो माइक्रोसॉफ्ट का है, एडब्ल्यूएस बोले तो अमेजोन का है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं इसको, ये लोग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देते हैं, जिसके अंदर तुम ऑटोमेटिकली अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय कर सकते हो, बहुत सारी चीजें और कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, क्लाउड डेवलपर्स। And then there is something called as testing or QA. There are testers in the IT world and there are QA, quality analyst लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत, और इससे ज्यादा और बहुत बहुत सारे और रोल्स भी होते हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा। जैसा कि डेवऑप्स, जैसा कि अपना हडूप हो गया, ये सब एसएपी हो गया, हडूप हो गया, ये सब भी चीजें हैं आईटी वर्ल्ड में। सो ये सब ये सब एक डेवलपर पॉइंट ऑफ से डिफरेंट है। हडूप, एसएपी वगैरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो जाती है, ये एडमिन की चीजें हो जाती है, इट इज नॉट अ डेवलपर थिंग। ओके, तो अभी अपने कोर्स में तुम क्या सीखोगे? हम लोग अभी तो मैंने तुम लोगों को फ्रंट एंड, अपन बैक एंड बता दिया, फ्रंट एंड बता दिया, फुल स्टैक बताया, डेवऑप्स वगैरह क्या रहता है, टेस्टर्स क्या रहते हैं। तो ये तुमको एक पूरा आईटी वर्ल्ड की आइडिया आ गई कि इतने सारे रोल्स होते हैं आईटी में। आईटी में अगर तुमको जाना है तो ये कोई भी रोल्स तुम चूज कर सकते हो। बट हम लोग स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर का कोर्स करवा रहा हूँ तुम लोगों को। कौन सा कोर्स करवा रहा हूँ? फ्रंट एंड डेवलपर का, ये वाला कोर्स करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। फ्रंट एंड डेवलपर का कोर्स करवा रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर का कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो सामने दिखता है, यूजर को जो दिखता है, वो उसके ऊपर हम लोग कोडिंग करने वाले। जैसा कि हम लोग, जैसा कि फेसबुक के जैसा कुछ तो भी बनाने वाले हैं, हम लोग नेटफ्लिक्स के जैसा कुछ तो भी बनाने वाले हैं, हम लोग हम लोग हम लोग ताकि वेबसाइट्स बनाने वाले हैं। अब हम लोग इसी चीज पे क्यों चूज करा है? क्योंकि ये चीज जो है ना, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। ये चीज में बहुत रेयरली ऐसा रिसेशन आने वाला है, क्योंकि हर किसी को कोई भी छोटा सा छोटा बिजनेस होने दो, उसको वेबसाइट चाहिए रहती है, अपने खुद की वेबसाइट चाहिए रहती है, उसके खुद के प्रोडक्ट उसके वेबसाइट पे बिकने चाहिए, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो हर एक बिजनेस को सामने, मतलब जो फ्रंट एंड होता है, वो उनको चाहिए, वो उनको चाहिए। तो अगर वो उनको चाहिए तो हर जगह HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की डिमांड रहेंगी ही, रिक्वायरमेंट रहेंगी ही। और अभी क्या हो गया है, इंस्टेड ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो ये तो बहुत वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है, ये तो सबको आनी ही चाहिए। बट नाउअडेज द मार्केट इज डिमांडिंग फॉर रिएक्ट डेवलपर्स। रिएक्ट इज आल्सो नथिंग बट, पहले तो ये जो HTML CSS है, HTML में तुम्हारा अपना, सॉरी, HTML, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेब डेवलपमेंट ही सिखाएंगे, हम लोग वेब डेवलपर ही बनेंगे यहाँ पे, बट विद एडवांस वेब डेवलपर बनेंगे। एडवांस वेब डेवलपर बोले तो जो कि वेब डेवलपमेंट की एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो कि वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी इन वेब डेवलपमेंट इज रिएक्ट। हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का कोर्स करेंगे। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट ये फेसबुक ने बनाई हुई लैंग्वेज है, जो कि अगेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड आउट ऑफ है। मतलब उनका जो बेस है, वो रिएक्ट जो बनाया गया है, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना गया है, उसके ऊपर। तो जिसको भी रिएक्ट सीखना होता है, उनको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आना ही आना है। अगर उनको ये तीनों चीजें नहीं आती है, उनका रिएक्ट सीख के कुछ फायदा नहीं है, या फिर उनको ग्रोथ वगैरह नहीं मिलेंगे, उनको समझेंगे ही नहीं कि क्या चल रहा है।
तो हम लोग ये वेब डेवलपर विद रिएक्ट, तुम अगर गूगल पे जाओगे और रिएक्ट डेवलपर की ओपनिंग देखोगे तो लैक्स है। मतलब मेरे को मेरे बच्चों को अभी भी डेली 5 to 10 कॉल्स आते हैं, डेली 10 कॉल्स। अगर तुमको 10 कॉल आ रहे हो और 4 इंटरव्यू डेली शेड्यूल हो रहे हो, तो तुमको तुमको कितना कितना अपॉर्चुनिटी है इस लैंग्वेज का, इसका पता चलेगा ठीक है। तो फिर हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। पहले तो फर्स्ट है हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स सीखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोर्स में हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक्स से सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे हम लोग। कंप्यूटर क्या रहता, क्यों रहता, कैसे रहता, क्या समझ में आता उसको, क्यों समझ में आता, ये जो फोन दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है कंप्यूटर पे, वो जो इमेजेस आती है कंप्यूटर पे कैसे आती है, वो जो वीडियो प्ले होता है वो कंप्यूटर कैसे प्ले कर सकता है। ये सब चीजें हम लोग स्टार्टिंग में 8 से 10 दिन में सीखेंगे। फिर बाद में स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसा हम लोग पेंट में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और कुछ तो भी ड्रॉ करते हैं, या हम लोग फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसा कुछ तो भी नया बनाते हैं, वैसे ही ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लर्निंग पर्पस के लिए यूज होती है, उसमें हम लोग कुछ 5 से 8 दिन खेलेंगे। तो इसमें मेरे सेकंड बैच एंड फर्स्ट बैच वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हैं। देन यू विल, मतलब तुम अगर ये दो चीजें करोगे ना, तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा वेब डेवलपर में कि मैं जो सीख रहा हूँ इट्स नॉट जस्ट समथिंग just normal thing, it is something very beautiful, you will learn it, you will enjoy it. So ये अगर फिर ये दो बेसिक्स करने के बाद हम लोग एक्चुअल हमारे कोर्स पे आएंगे जहाँ पे हम लोग HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। HTML जो है, जो एक स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए यूज होता है। HTML तुम जाके 8 स्टैंडर्ड की बुक देखोगे ना, अब तुम बोलोगे कि यार मेरे को तो ये कुछ समझना ही नहीं है, कंप्यूटर वगैरह कैसे मैं करूंगा। क्योंकि ये क्यों तुम कर पाओगे, ये बोल रहा हूँ मैं, क्यों कर पाओगे ये, क्योंकि HTML जो है ये 8 स्टैंडर्ड के बच्चा भी पढ़ रहा है आजकल। तुम CBSE के 8 स्टैंडर्ड की बुक खोल के देखोगे तो उसमें HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो हेलो, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस। हाँ ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करो। ओके, तो HTML and CSS are the languages even taught to the 8 standard students, and अगर वो 8 स्टैंडर्ड का बच्चा लर्न कर सकता है तो तुम लोग बहुत मैच्योर माइंड हो चुके हो, यू आर ऑल नाउ वेरी मैच्योर माइंड। तुमने इंजीनियरिंग कर लिया है, या BCA कर लिया है, या D.Ed कर लिया है, या XYZ कर लिया है, तो तो एटलीस्ट तुम एक अलग बच्चे वाले स्टेज में तो नहीं हो। और अगर तुम इसको सीरियसली पढ़ोगे तो तुम इसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाओगे और जल्दी सीख पाओगे। HTML and CSS are very easy things to learn. JavaScript is a language. It is the language of the browser. मतलब 80% of the browsers uses JavaScript for the language. ब्राउजर बोले तो जो तुमको क्रोम ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, ये सब ब्राउजर के अंदर जो चलता है ना वो जावास्क्रिप्ट चलता है, और वो जावास्क्रिप्ट ही तुम्हारा पेज डिस्प्ले करता है। तुम कोई बटन बाय नाउ करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पूरा कोड लिखा हुआ रहता है। तो फिर हम लोग वो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और इसीलिए इसकी इतनी डिमांड है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट की इतनी डिमांड है मार्केट में। And then 6th is after you learn HTML and CSS and JavaScript, now is when you will learn React. React is something is an advanced JavaScript, मतलब ये JavaScript ही है बट ये एडवांस है। क्या कर रही कुछ, जैसा कि फेसबुक ने क्या किया कि बहुत, ये फेसबुक ने देखा कि यार जावास्क्रिप्ट बहुत एडवांस लैंग्वेज होती जा रही है, सब लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक ने रिएक्ट बनाया। Facebook is developed and owned by React and contributed by React Facebook developers. Facebook में जो काम करता है वो इस React लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं।
और ये रिएक्ट लाइब्रेरी इज एन एडवांस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मतलब जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए इसको अगर तुमको रिएक्ट सीखना है तो। एंड देन वो रिएक्ट के अंदर ही कुछ और कॉन्सेप्ट है रिडक्स वगैरह के, वो भी सब आना चाहिए तुमको। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स रिएक्ट पे फोकस होगा और ऑलमोस्ट तुम ये सब चीजें सीखेंगे। इसमें कोई किसी को डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्या सीखोगे तुम इस कोर्स में, क्या करना है इस कोर्स में, कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, चलो आगे जाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने मेरा बता दिया, मैं क्या करने वाला हूँ या मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ या मैं क्या 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 चीजें करने वाला हूँ। अब मेरा एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू बिकम अ वेब डेवलपर। मतलब अगर तुमको सच में अच्छे से वेब डेवलपमेंट बनना है, वेब डेवलपर बनना है, तो ये मेरे 5 से 6 एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे। मतलब अगर तुमको ये एक्सपेक्टेशंस, अगर तुम रेडी हो ये सब करने के लिए जो मैंने 5 से 6 पॉइंट्स बताया है, तो ही इस कोर्स को ज्वाइन करो, नहीं तो तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो ना मेरा टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी। अगर तुम एक भी लेक्चर मिस करोगे तो दूसरे दिन यहाँ पे, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट डेली पढ़ाए जाते हैं कि तुम नेक्स्ट डे हर वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पे एक महीना जो पढ़ाया गया है वो सब मिलके भी एक पूरा नया वेबसाइट बनता है। मतलब तुमको जब काम करना होता है तो ये सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करना होता है, और तब जाके तुम वेब डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। तो अगर तुम एक भी लेक्चर छोड़ दोगे तो तुम लोग का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और मेरे को भी डिफिकल्टी जाएंगी पुराना रिवाइज करने में या तुम लोगों को वापस अंडरस्टैंड करवाने में। So I am expecting that no students should leave a lecture. The regularity is very important. जेन्युइनिटी और इंटरेस्ट है अगर आपको आईटी में आने का, और अगर आईटी में आने का है, पैसा बहुत है यहाँ पे। तुम 20 लाख 25 लाख 30 लाख कमा लोगे, लेकिन कोई भी नहीं कमाएगा। जो मेहनत करेगा वही कमाएगा। यहाँ पे जितना पैसा है उतना मेहनत भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईटी वाले 8 8 घंटे खाली बैठते हैं। वो लोग कभी कभी 2 4 दिन खाली रहते हैं उनके, लेकिन उसके बाद उनको 24 घंटे भी कम पड़ते हैं काम करने को। तो अगर तुम्हारी ये विलिंगनेस रहेगी, पैसा तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन अगर तुम लोगों को हार्ड वर्क करना है तो ही यहाँ पर आना है। हार्ड वर्क इन द सेंस तुमको बैठना पड़ेगा, काम करते हुए बैठना पड़ेगा, दिमाग लगाते हुए बैठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बैठना पड़ेगा। भले ही तुम गलती करो, गलती करना अच्छा है। मैंने कल एक गलती करा था, कल मैं खुद ही बोलते गया और मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है लाइव सेशन यूट्यूब का। लेकिन मैंने सीखा चलो यार वो गलत हो रहा है, वो नहीं हुआ ठीक से, मेरा इंटरनेट प्रॉपर नहीं था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, जो भी था। बट ऐसा है कि तुम छोड़ना नहीं है ना। भले ही तुम गलती करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ मेंटर करने के लिए, सिखाने के लिए, कोच करने के लिए। बट गलती करो तो करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करके सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ तो ही आगे बढ़ोगे। सो दैट इज वेरी यू हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड यू डोंट हैव टू क्विट। You don't have to quit and you have to do a hard work, no missing the lecture. And the important thing is अगर तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। जहां पे भी तुमको कुछ भी नहीं समझा, भले ही इट शुड बी अ वेग क्वेश्चन रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll repeat one or twice or thrice, no problem. But you should ask questions. When you are there in the lectures, अगर तुम ये ज्वाइन करते हो कोर्स को, तुम अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना तो फायदा ही नहीं है ये कोर्स करके। क्वेश्चन पूछो, रुकाओ मुझे, जहां तुम लोग जहां पर अटक गए हो वहां पे मुझे स्टॉप करो और मुझे पूछो कि बॉस ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, पेशेंस पेशेंस रहना है। ये कैसा है, ये तो बहुत सारे लोगों के लिए जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या लगता है कि यार हमको समझ में ही नहीं आता है, चलो छोड़ देते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो पहली बार में नहीं समझ में आता। कोई भी चीज पहली बार में समझ में किसी को भी नहीं आती है, क्योंकि ये आईटी का वर्ल्ड है, यहाँ पे 0 और 1 के साथ सब खेलना पड़ता है।
पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है ये चीज। इसको तुम 2 से 3 बार रिवाइज, और ये मैं खुद करता हूँ 2 से 3 बार, मतलब कम से कम 4 बार रिवीजन होता है चीज का। तो थोड़ी थोड़ी देर से प्रैक्टिस के बाद तुमको समझ में आएंगी चीजें। एकदम तो किसी को, मेरे को नहीं समझ में आई थी एकदम। मेरे को मेरे को इंजीनियरिंग में तो मैंने क्या किया था मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन बाद में मैंने जब काम करना चालू किया, 3-4 साल आईटी में स्पेंड किए, तब जाके मेरे को चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क हियर, यू हैव टू बी पेशेंट। अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट गिव अप मेंटालिटी अगर तुम्हारी अभी से है तो अभी से छोड़ दो, आने की जरूरत भी नहीं है। एंड देन लास्ट थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स। 2 घंटा मेरा क्लास रहेगा, 2 घंटे के बाद 4 घंटा मैं कुछ ना कुछ असाइनमेंट दूंगा। नहीं असाइनमेंट दिया तो मेरे को फोर्स करो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं कभी कभी असाइनमेंट देना मिस कर देता हूँ, लेकिन 60% टाइम मैं असाइनमेंट देता हूँ तुम लोगों को, या तो वर्बली या तो रिटर्न में। तो वो असाइनमेंट्स तुमको करने पड़ेंगे। 2 घंटा मेरी क्लास करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, वो सेम चीज 2 घंटा वापस तुमको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मेरा पूरा जो लेक्चर्स रहते हैं इट्स ऑल प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल बेस्ड रहते हैं, थ्योरी लेस मोर प्रैक्टिकल। ओके, तुमको वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा 2 घंटा, और प्लस 2 घंटा खुद को और एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि हर चीज, क्योंकि ये पूरी इंसाइक्लोपीडिया है बहुत बड़ी, मैं तुमको हर चीज तो नहीं बता सकता हूँ। मैं मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेन कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो साइड की चीजें है ना, जो साइड की चीजें हैं, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। सो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 आवर। और उसमें अगर तुमको कुछ प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन आइदर पेस्ट इन द ग्रुप जो हम लोग बनाएंगे, जो क्लास का ग्रुप रहेगा। कोई ना कोई बच्चों को प्रॉब्लम आया होगा, या तो वो सॉल्व कर देगा, या मैं जब भी देख लूंगा मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस दे दूंगा उसका। So this is the expectations from all of the students who would be joining, या जो भी ज्वाइन कर चुके हैं उनसे भी। आई थिंक मैंने ये कोर्स पिक्चर्स वगैरह पहले ही दे लिया है कि व्हाट यू विल लर्न हियर, यू विल लर्न फ्रॉम द बेसिक्स, यू विल लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये मींस मैं तुमको इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा, कैसे आंसर देना है वो बताऊंगा, तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो बताऊंगा। नौकरी मॉन्स्टर, इंडीड वगैरह में रेज्यूम्स बनाएंगे हम लोगों को, हम लोग हम मैं एक आधा लाइव प्रोजेक्ट भी दूंगा तुम लोगों को, जिसको इंटरेस्ट है जेन्युइनली करने के लिए। फिर हम लोग ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे जिसके अंदर लर्निंग होंगी। एंड ठीक है, ये सब होगा। कोर्स ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। पहले हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पर होंगे, बाद में 10-15 दिन का एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, बाद में 10-15 दिन तुम्हारे रिज्यूम प्रिपरेशन वगैरह में जाएंगे, और एक 20-25-30 दिन समझ लो तुम लोगों को सिलेक्शन होने में और इंटरव्यू क्रैकिंग में लगेगा। तो ऐसा ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 6 मंथ्स में अगर तुमने ये कोर्स डेडिकेटेडली किया तो इंशाल्लाह सिलेक्शन होगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ अगर तुमने किया तो। टाइमिंग्स डेली 7 to 9 है, सैटरडे संडे छुट्टी है। अनलेस अगर हम लोग ने कुछ मिस कर दिया है, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा, अगर हम लोग अगर ले रहे हैं क्लास सैटरडे संडे, तो ये फीस स्ट्रक्चर है। टोटल 30,000 फीस है। 10,000 ही भरना है तुमको, 20,000 तुमको सिलेक्शन के बाद देना है। तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद तुमको 20,000 देना है, 10,000 तुम्हारा कोर्स जब तुम करोगे तब। और पहले मतलब जैसे ही तुम कोर्स ज्वाइन करोगे उसके 4-5 दिन में यू हैव टू पे 3,000 एज रजिस्ट्रेशन फीस, और वो तुमको मेरे ऐप में परचेस करके पे करना पड़ेगा। फिर बाद में पहला इंस्टॉलमेंट, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,000 का, फिर 2,000 का, फिर 2,000, फिर हर महीने 2-2 हजार रुपए, और लास्ट महीने में 1,000 रुपए। ऐसा तुमको फीस स्ट्रक्चर भरना है। ऐसा हमारा फीस स्ट्रक्चर होगा, जो कि बहुत फाइनेंशियली वीक है। जो 1500 से 2,000 रुपए भी महीने को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 1500 से 2,000 रुपए भी महीने को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ही सिर्फ ये लास्ट वाला स्कीम है, जो कि पे लेटर आफ्टर यू अर्न। फीस अगर तुम लोग बाहर जाके देखोगे तो दे आर टेकिंग 1-1 लाख, 1.5 लाख ये सेम कोर्स की फीस है। मैंने ये फ्री में भी करवा के देखा, मेरी पहली बैच फ्री थी तो कोई नहीं आया, सिर्फ 7 बच्चे आया। मैंने फीस बोला तो कुछ, अभी मेरे पास 20 बच्चे हैं। अभी मैं थोड़ा सा फीस के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ,
बट अगर तुम फीस नहीं भरोगे ना, लोग छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी मैंने फीस कम भेजा है, चल मैं छोड़ देता हूँ। तो जस्ट टू हैव मोटिवेशन एंड दिस फीस स्ट्रक्चर इज देयर एंड यू हैव टू पे दिस फीस डिलीजेंटली। और अभी नई बैच में जो भी रजिस्टर करेगा वो अपने मेरे ऐप पे रजिस्टर करेगा एंड दे हैव टू पे 3000 टू स्टार्ट एंड वी विल हैव ऑल द लेक्चर्स ऑन द ऐप ओनली। हम लोग का एक एंड्रॉइड ऐप है, वो आप लोगों को डाउनलोड करना है और उस पे हमारे लेक्चर्स होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी मैंने बोला है, पढ़ाया है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। सर रजिस्ट्रेशन किधर करना है, कौन से लिंक पर? हाँ, मैं आपको ये लेक्चर होने के बाद ये चैट में भी डाल देता हूँ मैं, और बोल दूंगा। या फिर तुमको जहाँ से भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दूंगा। मेरा नंबर सब